Okay, today our topic is about the excretion. Excretion. Before starting this topic, excretion, there are certain terms which I would like to explain you. कुछ terms हैं जो कि हमें समझ लेनी चाहिए. For example, excretion. Excretion. Excretion is the removal of liquid and gaseous waste from the body. Liquid gaseous waste includes number 1, urea, uric acid, excess water, mineral salts, and excess mineral salts. Excess mineral salts. ठीक है. अच्छा, excretion जो है वो removal of liquid and gaseous waste from the body. That is liquid and gaseous waste includes. ठीक है. Waste includes urea, uric acid, excess water, excess mineral salts. Okay. Another thing is the gaseous waste. It includes, this one is the liquid waste. It comes out in the form of a solution. Now the this one is the liquid waste. Now the gaseous wastes include removal of carbon dioxide and water vapors from the body in the form of gas and vapors. Okay, now the organs of excretion. Organs that involves in excretion. Okay. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं नंबर 1, स्किन, नंबर 2, lungs, number 3, liver, number 4, kidney. As far as the skin is concerned, it removes liquid waste, lungs removes gaseous waste, liver also removes liquid waste, and kidney also removes liquid waste. Okay. Now another thing which we have to understand in this chapter is the metabolism. अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो है ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन भी रही होती हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स टूट के उनसे वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. सो मेटाबॉलिज्म जो है वो बायोकेमिकल एक्टिविटी है जो कि बॉडी के अंदर होती है. मेटाबॉलिज्म is the biochemical reactions
chemical reactions that takes place inside any living body. Okay. Metabolism is divided into two types. Anabolism, and another thing is catabolism. Okay. As far as anabolism is concerned, a process in which body makes complex material by combining simple material. Whereas catabolism is the process in which body breaks down complex material to simple one. Okay. In other words, एनाबॉलिज्म जो है वो बिग मॉलिक्यूल मेकिंग प्रोसेस है, मेकिंग ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स from small molecules, whereas catabolism is the breaking of big molecules into small molecules. Example of anabolism is protein synthesis in the body. Example, protein synthesis. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल जो है डाइजेशन. अच्छा, now let's have a discussion on some other terms. अच्छा, अब इसके अंदर जो है एक हम जो टर्म है उसको भी डिफरेंस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. एंड देयर इज अ difference between digestion and excretion. Okay. Digestion removal of solid waste, that is feces from the large intestine.
removal of solid waste from the large intestine, whereas excretion removal of liquid and gaseous waste from skin, lungs, liver and kidney. Understand? यहाँ तक बात समझ में आई? Okay. Now today we are going to start with the liver. Okay. Okay. Liver is the largest gland of the body and it has got multiple functions. It has got so many functions that our whole body rely on the liver. In case of metabolism के लिए अगर हमारी बॉडी किसी बायोकेमिकल एक्टिविटी में अगर हमारी बॉडी किसी चीज पे रिलाई करती है तो वो है लिवर. लिवर as a waste material eliminator. Okay. Okay. I'm making the diagram of the liver. And it has got major veins and arteries entering and leaving inside the liver. ठीक है, ये बेसिकली जो मैं बना रही हूँ ये है हेपेटिक पोर्टल वेन. This one is the hepatic portal vein and that comes from the small intestine. Actually it's originated from the small intestine. ये small intestine से originate होती है और इसकी जो जैसे कहा जाए कि ये बेसिकली विलाई के अंदर जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनको कलेक्टिवली जब वो बाहर निकलती हैं इंटेस्टाइन से तो they will join a big vein that is called the hepatic portal vein. ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, और इसके अंदर विलाई का स्ट्रक्चर है. यहाँ से सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होकर जितना भी होता है वो सारा का सारा हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर एंटर हो जाता है. ये हमने डाइजेशन के चैप्टर में पहले पढ़ा था. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर भी छोटी छोटी मैं ब्लू वेन्स जो हैं वो दिखा देती हूँ कि यही वेन्स जो होती हैं ये आगे जाके वेन्यूल्स जो हैं आगे जाके बड़ी वेन हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं and they collect all the amino acids and glucose in the hepatic portal vein. Okay. Liver and this one is the hepatic portal vein. Okay. अच्छा, ये लेके क्या जा रही है? ये लेके जा रही है शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स. ठीक है, लिवर के अंदर लेके जा रही है.
अब लिवर के अंदर क्या होता है कि एक्सेस शुगर जो होती है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो रिमेनिंग होती है वो हेपेटिक वेन के जरिए टुवर्ड्स हार्ट निकल जाती है along with impure blood, that is carbon dioxide containing blood, जो यूज होने के लिए होती है। एक्सेस जो होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसके अंदर रिक्वायर्ड शुगर, रिक्वायर्ड ग्लूकोज, ग्लूकोज और शुगर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं वो लिवर के अंदर ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। एक्सेस अमीनो एसिड्स, ठीक है, ब्रोकन डाउन इन यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। एंड ठीक है, ये जो यूरिया और यूरिक एसिड होता है ये हाँ, लिवर के जो सेल होते हैं इसको भी किसमें दाखिल कर देते हैं, हेपेटिक वेन के अंदर। यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब भी इसमें चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ लिवर एज अ वेस्ट मटेरियल एलिमिनेटर को जो है डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सेस अमीनो एसिड्स जो कि यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, ये जब वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं और मिनरल सॉल्ट्स के साथ मिक्सअप होते हैं तो दे विल फॉर्म अ यूरिन, ठीक है। व्हेन दे पास्ड थ्रू द हार्ट, अच्छा ये जो होती है, ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है ये किसकी तरफ जाती है, ये सब कुछ लेके यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारा लेके और जैसे कहा जाए कि रिक्वायर्ड ग्लूकोज लेके और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सब लेके, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की तो बहुत कमी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होता है ब्लड ना, तो ये जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है। ये आपके किसमें चला गया, हार्ट के अंदर, वेना कैवा के थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू हार्ट में एंटर हो गया। अब हार्ट में जब ये एंटर हो जाएगा तो हार्ट जो होगा वो इसको पंप करेगा किसके अंदर, अभी मैं इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा वैसे नहीं बता रही हूँ, जैसे कहते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो टॉप से निकल रही होती है यहाँ से, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी को भेजेगा। हार्ट जो होगा इसको प्योरीफाई होने के लिए कि ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ये लंग्स को भेज देगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अच्छा, ये आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो कि रेड कलर की नहीं बनती बल्कि ब्लू कलर की बनती है क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये है वेना कैवा, वेना कैवा, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं, हेपेटिक वेन जो है, हेपेटिक हेपेटिक वेन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी आगे जाके वेना कैवा में, ठीक है। वेना कैवा जो है जब हार्ट में एंटर होगी तो हार्ट से जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये जाएंगे लंग्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, इसके अंदर होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया प्लस यूरिक एसिड जो कि लिवर ने तोड़ सही के है। भेजा हुआ होगा, सही है। अब ये जाएंगे लंग्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये लंग्स के अंदर चले जाएंगे, 2 बॉक्सेस बना रही हूँ, ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जनाब ये आ गए हमारे लंग्स के अंदर। अब यहाँ होगी इसकी प्योरिफिकेशन, दैट मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जो होगा तो इसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो है
वो ब्रीदिंग के जरिए एक्सेल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी एक एक्सक्रीशन हुई, यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो होगी, लंग्स जो होंगे वो बाहर फेंक देंगे, यहाँ से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बाहर फेंक दी जाएगी, ये लंग्स है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो इनको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के थ्रू इनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है उसके अंदर हमने ये गैसियस एक्सचेंज भी पढ़ा था थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को सप्लाई कर दी जाएगी। अब जब ब्लड वापस आएगा तो वो पल्मोनरी वेन के जरिए वापस आएगा, जो कि रेड कलर की हुई है, वाहिद वेन होती है जो रेड कलर की होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है, ये हार्ट तक लेके आएगी। अब इसके अंदर भी यूरिया यूरिक एसिड तो होगा, ठीक है, इसमें ग्लूकोज भी होगा, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल जो है और एक्सेस वाटर जो होगा वेपर्स की फॉर्म में, वो सारा का सारा एक वेस्ट मटेरियल रिमूव हो चुका होगा, बाकी सारे इसके अंदर मौजूद होंगे और एक एक्स्ट्रा चीज कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो चुकी होगी। इसमें होगी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, ठीक है, प्लस यूरिया प्लस यूरिक एसिड, ठीक है, ये इसके अंदर हो गया। अब ये जो है ना ये इधर की तरफ आएगा और हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा और यहाँ से पंप होगा, यहाँ से हार्ट जो है ये इसको लेके जाना है। अब हार्ट जो है वो ये सारा मटेरियल जब पंप करेगा पूरी बॉडी के अंदर एओर्टा के जरिए, ठीक है, एओर्टा पीछे से आ रही होती है बैकबोन से हार्ट के, मतलब हार्ट हार्ट के बैक साइड से, यहाँ से निकलेगी और पीछे की तरफ टर्न करेगी एओर्टा, ठीक है, ऐसे करके, और फिर पीछे से जो है वो दैट मीन्स के बैकबोन से होती हुई ये इधर से पीछे से या पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और यूरिया यूरिक एसिड जब जो है इस तरह ट्रैवल करता 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 कहाँ तक पहुंचेगा, किडनी तक पहुंचेगा, नीचे बैकबोन के साथ लगी होती हैं किडनीज, अभी हम उनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। एक किडनी लेफ्ट साइड पे होती है, एक किडनी राइट साइड पे होती है, ठीक है। ये एओर्टा जो होगी ये जैसे कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूट होगी दोनों किडनीज के अंदर और फिर नीचे की तरफ निकल जाएगी ब्लड देती हुई, ठीक है, ऑक्सीजन देती हुई और यूरिया यूरिक एसिड देती हुई फॉर प्योरिफिकेशन, ठीक है, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। अच्छा, और ये नीचे बॉडी में लेग्स की तरफ और इधर उधर जहां जैसे जाना होगा मजीद ऑक्सीजन लेके पहुंच जाएगी। इसके अलावा इसके साथ ही जो है वेना कैवा भी चल रही होती है, ठीक है, वो इधर साथ साथ चलती भी आ रही होगी, जो ऊपर की तरफ जा रही होगी गंदा ब्लड लेके, और ये जो है ये किसमें एंटर हो रही होगी, इंटेस्टाइन के थ्रू लिवर के अंदर जा रही होगी। देखो हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ से, समझ गए ना, हाँ लाइक दिस, और फिर ये लिवर को कनेक्ट कर रही होगी, सही है ना, इस तरीके से। सही है। इनफैक्ट अगर मैं इसको यहाँ नहीं बनाती बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, इसको ऊपर की तरफ बना देती हूँ, दैट मीन्स के ये यहाँ से, बस ये समझ लो कि ये वेना कैवा को कनेक्ट कर रही है, पूरी वेना कैवा है जो कि लिवर वगैरह से होती हुई सब आ रही है, ये पूरा इस तरीके से, ठीक है। और
फिर प्योरिफिकेशन के लिए ले जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यूरिया यूरिक एसिड। बल्कि ये जो साइड वाला जो लिवर है इससे हम कनेक्ट करते ही नहीं है, हम बीच में अलग से यहाँ पे अलग लिवर बना देते हैं इसका, ठीक है, ताकि जो है ना एक वो पूरा समझ आ जाए। ये लो भाई हमने यहाँ पे लिवर बना दिया, ये लिवर के अंदर एंटर होगी। इस तरह जो है ब्लड का फ्लो हो रहा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड, और जैसे कहा जाए यूरिया जो होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है किडनी के थ्रू। ये वेना कैवा नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है, ठीक है। और ये जो है ये लिवर है, दिस वन इज दी लिवर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या था, यूरिया यूरिक एसिड, और ये जो है लिवर, ठीक है। अच्छा ये जो है ग्लूकोज और शुगर और अमीनो एसिड्स, ये लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये जो किडनी है ना, इसके साथ ही जो है ना यहाँ से जब ये फिल्ट्रेशन हो जाती है तो यूरेटर ट्यूब्स जो होती हैं वो निकलती हैं, और जो कि अल्टीमेटली ब्लैडर से एंड देन यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाती है, and that's how the urine is being filtered out. Okay, so liver is the largest gland and it's removed almost all the urine from the body, ठीक है। and its kidneys are not the kidney does not take part in the metabolic activities, rather liver take part in all metabolic activity, ठीक है। जो भी तोड़फोड़ करनी होती है वो लिवर कर रहा होता है। किडनीज आर जस्ट दी स्ट्रेनर्स या फिर जैसे कहा जाए फिल्टर्स ऑफ यूरिया यूरिक एसिड, सॉल्ट्स, एक्सेस सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स कौन से, एक्सेस सॉल्ट्स प्लस वाटर, ठीक है। इन सब के जो है ना ये स्ट्रेनर्स हैं और नथिंग एल्स। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो कि जिसे कहा जाए कि हमारी जो एओर्टा है जो लेकर आ रही है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ग्लूकोज लेकर आ रही है, और साथ में यूरिया यूरिक एसिड जो लेकर आ रही है। यूरिया यूरिक एसिड को जिसे कहा जाए कि फिल्टर आउट करना है। ग्लूकोज इसको प्रोवाइड करेंगे ताकि ग्लूकोज के थ्रू जो है ये क्या कर सके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करेंगे तभी तो सेल्स काम करेंगे ना, है कि नहीं है, ठीक है। सो बाय दिस लिवर is going to perform its function as a removal of waste material from the body, organ that removes waste material from the body, ठीक है। और इसमें वेस्ट मेटाबोलाइट्स को रिमूव करने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो लिवर का होता है, ठीक है। सही है।